So, hello everyone, and welcome to my YouTube channel. So, the name of this YouTube channel is The Literate Panda, and as you guys can already see the title, it's pretty much of a historical title. So, we'll be covering topics on Indian history alongside world history as well. We'll be focusing on literature and a special discipline or a special branch of literature called the comparative literature as well as the comparative Indian literature. So this is my first video, and this video is made on the Gupta Empire. I hope you guys will like it. So and thank you so much for your constant support. So let's begin the video. So now let's move on to the contents as to what we all will be discussing. So first of all, I'll give an introduction of the Gupta Empire. Then we'll look at the list of some obviously of the important kings of the Gupta dynasty. We'll then move on to administration. Then we'll discuss the military section. Then literature and science, and then the impact and influence that the Gupta Empire has had on the Indian history. So I just want to request you all a thing here that in this video I'll be explaining more through my voice rather than the pictures or the words presented, because it is not possible to explain everything or write down everything through visual, because you have to skip some important parts and let people know through your voice as well. And I'll be communicating both in English and Hindi, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी आप बहुत कुछ चीज़ें बयां करना चाहते हो लेकिन वीडियो में उतना स्पेस नहीं हो पाता, या फिर जैसे वीडियो में आप उतनी चीज़ें लिख नहीं पाते हो। तो मैं आपको बोलता जाऊंगा कुछ जैसे ये लिस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट किंग्स में अभी किंग्स के बारे में मैं नाम मेंशन किया है और इनके बारे में मैं थोड़ा बहुत आप सबको बताऊंगा, लेकिन इनके बारे में इतना एलाबोरेटली लिखा नहीं है। तो अभी हम फिर दूसरे सेक्शन में जाते हैं। So let's begin with an introduction of the Gupta Empire. So, in simple words, the Gupta Empire was believed to be the feudatories of the Kushanas. ये कुशानास के feudatory माने जाते थे. Now, who were the Kushanas actually? The Kushana Empire was a North Indian empire which stretched till Afghanistan and certain parts of Central Asia as well. तो ये कुशान एम्पायर के फ्यूडिटरीज में से माने जाते थे। ऑल्दो इनकी जो होमलैंड है, दी होमलैंड ऑफ द गुप्तास, इनकी गुप्तास की होमलैंड काफी ज्यादा अनसर्टेन है। सो मेनी ऑफ देम हैव सो मेनी हिस्टोरियंस एंड मेनी थ्योरीज हैव बीन देयर टू प्रूव दैट दे वर एक्चुअली फ्रॉम मॉडर्न डे उत्तर प्रदेश, जो आज के ज़माने का उत्तर प्रदेश है, यानी कि आपके नॉर्थ इंडिया से ये माने जाते थे। बेसिकली दे वर बिलीव टू बी फ्रॉम दी वैश्या कम्युनिटी, यानी कि दे वर नॉट क्षत्रियास, क्योंकि जो चार सेक्शंस होते थे हमारे कास्ट सिस्टम के, उनमें से ये वैश्या से बिलोंग करते थे एंड ये जनरली ट्रेडर्स हुआ करते थे। दे वर नॉट ब्राह्मण्स और दे वर नॉट क्षत्रियास, सो दे वर बिलीव टू बी फ्रॉम दी वैश्या कम्युनिटीज। And one of the most important things while discussing the Gupta Empire is they are believed to have made or they are believed to have made good use of the iron ore, because they had quite a brilliant trade with the Byzantine Empire at that time. जो बाइजेंटाइन एम्पायर था उसके साथ इनकी काफी अच्छी ट्रेड होती थी, और इस वजह से भी है कि उनके जो आयरन ओर के इस्तेमाल थे उस टाइम पे वो काफी ज्यादा माना जाता था, काफी ज्यादा अच्छा होता था। जो इस एम्पायर की टाइमलाइन है दैट इज फ्रॉम 4th सेंचुरी टू 6th सेंचुरी, ये इस एम्पायर की बेसिकली टाइमलाइन है। अब हम जाते हैं इसके अगले सेक्शन पे विच इज द किंग्स और द लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट किंग्स। सो नाउ वी कम ऑन टू द इम्पोर्टेंट सेक्शन विच इज द लिस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट किंग्स, जो इनके मेन राजाज हैं या फिर जिन्होंने ये किंगडम जिन्होंने किंगडम की स्थापना की थी। सो जैसे द फर्स्ट किंग दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज श्री गुप्ता। Many of us, when we talk about the Gupta Empire, we actually think of Chandragupta the first, or Chandragupta the second, who was also known as Vikramaditya, or Samudragupta, or Skandagupta. Very few of us actually know that the Gupta Empire was actually founded by Shri Gupta. तो Shri Gupta ने ये empire found किया था in till the late 3rd century, and then he was succeeded by his son Ghatotkacha. तो इन्होंने तीसरी सदी के आखिर में ये स्थापना की थी गुप्ता एम्पायर की, एंड देन उनके बाद उनके बेटे आए थे चंद्रगुप्त, सॉरी घटोत्कच आए थे उनके बाद, पार्डन प्लीज।
घटोत्कच आए थे। उसके घटोत्कच के बाद आते हैं गुप्ता एम्पायर के सबसे इंपॉर्टेंट किंग्स में से एक, चंद्रगुप्त दी फर्स्ट। ये चंद्रगुप्त दी फर्स्ट मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज जब भी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, मे इट बी इंडियन हिस्ट्री और वेस्टर्न हिस्ट्री, we actually find a lot of names in common. Like if you read the English literature, you will find the Henrys, the Charles, quite a lot. So the same thing goes for Chandragupta. Just let me remind you a thing that this is not the Chandragupta of the Maurya dynasty. That was Chandragupta Maurya. This is just Chandragupta the first. जैसे इनका नाम ही था चंद्रगुप्त, तो वो अलग थे एंड ये अलग है। प्लीज डोंट कंफ्यूज, दोनों अलग अलग किंग्स हैं, अलग अलग डायनेस्टीज के, अलग अलग टाइम पीरियड के। तो ये हैं चंद्रगुप्त the फर्स्ट, ये घटोत्कच के बेटे हैं। घटोत्कच जो कि श्रीगुप्ता जो कि फाउंडर थे, यानी कि चंद्रगुप्त the फर्स्ट इज द ग्रैंडसन ऑफ द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी। ये पोते हैं इस डायनेस्टी की स्थापना करने वाले की। सो लेट अस डिस्कस समथिंग अबाउट चंद्रगुप्त the फर्स्ट। तो जैसे चंद्रगुप्त the फर्स्ट को ये हमारे हिस्ट्री में मेंशन है कि ही वाज नोन एज द महाराजा धीराजा, विच इज द किंग ऑफ ग्रेट किंग्स, किंग किंग ऑफ ग्रेट किंग्स। यानी कि उनको महाराजा धीराजा कहा जाता था, जिसका ये मतलब होता हो कि इसके मतलब कि मतलब सर्वोच्च राजाओं में भी राजा। तो his most of his legacy lie from the fact that he actually married the Lichavi princess Kumar Devi, which actually bought him quite a good enough of fortune because he received the ownership of rich mines full of iron ore adjacent to his kingdom. तो मेटलर्जी जो था उस टाइम पे, इट वाज ऑलरेडी एन एडवांस स्टेज, एंड फोर्ज्ड आयरन वाज नॉट ओनली यूज्ड टू मीट द इंटरनल डिमांड्स but also became a valuable trade commodity. तो ये एक काफी इकोनॉमिकल बेनिफिट हो गया इनके लिए। प्लस द रेन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य इज जनरली सीन एज द बिगिनिंग ऑफ अ वेरी high watermark kind of reign of the Gupta dynasty. He, being the son of Ghatotkaч and then marrying Lichavi princess Kumar Devi, bought him a lot of fortune, and this kind of paved the way for the next kings, to come. चंद्रगुप्त के बाद आते हैं उनके बेटे, his son succeeded him, Samudragupta. Samudragupta is a very important name in our Indian history because Samudragupta was a very brilliant, I would say, king, and also he was a very brilliant military genius. He was also responsible for the growth of the Gupta Empire for in a very large area. I mean, वो एक राजा तो अच्छे थे ही, साथ साथ उनकी जो मिलिट्री टैक्टिक्स थी वो काफी अच्छी मानी जाती थी। नॉर्थ इंडिया जीतने के बाद समुद्रगुप्त ने साउथ इंडिया में अपने मिशन एक्सपांड किए थे। उसके बावजूद भी इन्होंने अफगानिस्तान को वेस्ट में और ईस्ट में ब्रह्मपुत्र नदी की तरफ भी अपनी जो सेनाएं हैं वो भेजी थी। एंड दिस इज हाउ द गुप्ता एम्पायर एक्चुअली एक्सपांडेड अ लॉट। आई मीन व्हेनेवर यू सी द मैप, जो मेरी जो सबसे पहली जो स्लाइड थी, इंट्रोडक्शन वाली स्लाइड, उसमें जो आप मैप देखोगे, जो उसमें जो एम्पायर है गुप्ता एम्पायर की, वो मैप में आप देखोगे जितना जितना उन्होंने एक्सपांड किया है ना, तो उसका बहुत ही एक जो बड़ा मेजर रीजन है वो ये है कि समुद्रगुप्त की उस टाइम की पॉलिसीज इतनी अच्छी थी कि ही एक्चुअली डिड अ लॉट फॉर दिस एम्पायर टू एक्सपांड देम। एंड इसके रीजंस बहुत हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, द फर्स्ट रीजन इज दैट ही वाज वेरी अटेंटिव टू द वर्ड राजधर्म। नाउ राजधर्म क्या होता है? राजधर्म इज समथिंग विच वी फील एज द ड्यूटीज ऑफ अ किंग। एक राजा का दायित्व क्या होता है, व्हाट आर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ किंग, हाउ ही शुड टेक केयर ऑफ हिज किंगडम। तो समुद्रगुप्त वाज वेरी अटेंटिव टू राजधर्म। तो एंड समुद्रगुप्त पेड स्पेशल अटेंशन कि वो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, कौटिल्य रोड अर्थशास्त्र, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी फॉलो इट। आई मीन कंट्रीज लाइक, आई मीन इंडिया फॉलोज इट इवन टुडे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, उन्होंने अच्छे से उसको नापा था, अच्छे से उसको पढ़ा था, एंड काफी अच्छे उसमें उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए थे कि हाउ हिज किंगडम शुड एक्चुअली प्रोसीड। एंड मैं आपको बता दूं फॉर योर इंफॉर्मेशन, कौटिल्य was the advisor, the minister, and he was like the teacher of चंद्रगुप्त मौर्य। कौटिल्य जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम के थे, एंड उन्होंने अर्थशास्त्र लिखा था। अर्थशास्त्र एक मैं आपको एक काइंड ऑफ एथिकल गाइडलाइन की तरफ से एक बुक मैं मानना चाहूंगा, जो इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल ट्रीटाइज के ऊपर एडवाइस करती है। एंड दिस बुक वाज फॉलोड बाय समुद्रगुप्त, जिसकी वजह से उनको काफी ज्यादा हेल्प मिला अपने मिलिट्री एक्सपेंशन में। उसके बाद इन्होंने काफी ज्यादा डोनेशंस भी किए थे, डोनेशंस इन द नेम ऑफ रिलीजन एज वेल एज इन द नेम ऑफ एजुकेशन एज वेल। एंड बिसाइड्स बीइंग अ करेजियस किंग एंड एन एबल एडमिनिस्ट्रेटर, वो एक पोएट भी थे, एक कवि भी थे और एक म्यूजिशियन भी थे।
समुद्रगुप्त के नाम पे जो गोल्ड कॉइन्स इशू किए गए थे विच यू विल फाइंड इजीली ऑन द इंटरनेट, उसमें से जब हमारे हिस्टोरियन साइंटिस्ट ने और रिसर्च किया तो काफी पता चला कि किस तरीके के एक वाइडली लव्ड किंग वो थे। आई मीन फॉर एग्जाम्पल, जो सेलोन था उस टाइम पे, सेलोन इज श्रीलंका, तो मेघवर्णा वॉज द किंग ऑफ सेलोन। सो उन्होंने ही उसमें फंड किया था, प्लस उन्हें परमिशन दी थी कि वहां पे बोध गया पे एक मोनेस्ट्री बनाया जाए उस चीज में। तो वो काफी ज्यादा एक गुडविल किंग में से माने जाते हैं, इन्होंने काफी अच्छे पॉलिसीज इंप्लीमेंट की, तब जाके जो है गुप्ता एम्पायर इतना आगे बढ़ा। एंड these are times when we actually why we consider Gupta Empire or the Gupta dynasty as the golden age in Indian history. And after Chandragupta, the next in the line is Ramagupta. So Ramagupta was not that important from political and military perspective, because he wasn't as he wasn't as strong. He wasn't as strong as more advanced than his predecessor. But we find more about Ramagupta from the 6th century play, the Devi Chandragupta, which is believed to have been written by Vishakha Deva. तो उस प्ले में ये लिखा गया है कि जो रामागुप्त थे वो अच्छे टाइज बनाने के अच्छे टाइज बनाने के लिए, या फिर टू मेंटेन अ गुड एनवायरनमेंट बाय नॉट फाइटिंग इट, ही गेव हिज वाइफ टू द एनिमीज, द साकास। तो तो एक और एम्पायर था उस टाइम पे, द साका एम्पायर, उनसे अच्छे रिश्ते बनाए रखने के लिए क्या किया कि रामागुप्त ने अपनी पत्नी उनको दे दी, बिकॉज so that लड़ाई ना हो। and it was at the time this was seen more of as a matter of shame, because a king shouldn't give his wife away to his enemies। and इसी के लिए जो उनके बेटे थे चंद्रगुप्त दी सेकेंड और विक्रमादित्य, जिन्हें हम कहते हैं चंद्रगुप्त दी सेकेंड और विक्रमादित्य, इसीलिए बाद में विक्रमादित्य जाते हैं, लड़ते हैं और वापस पत्नी भी लेके आते हैं, और लाने के बाद एज एक्चुअली द लेजेंड गोज, विक्रमादित्य ने रामागुप्त को पब्लिकली एग्जीक्यूट किया था। नाउ दिस इज ओनली जस्ट अ लेजेंड और यू कैन से अ मिथ, बट डिफरेंट वर्क्स में ये मेंशन है कि विक्रमादित्य ने रामागुप्त को पब्लिकली एग्जीक्यूट किया था। आफ्टर रामागुप्त द किंगडम वाज कंट्रोल्ड एंड द किंगडम वाज टेकन ओवर बाय हिज ब्रदर चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त, दिस इज चंद्रगुप्त द सेकंड, जो इनके दादाजी थे चंद्रगुप्त द फर्स्ट, एंड नाउ ही इज चंद्रगुप्त द सेकंड। तो चंद्रगुप्त द सेकंड वाज commonly or popularly known as Vikramaditya, because he was given the title Vikramaditya because of his achievements, which means the power of the sun, power of the sun। तो चंद्रगुप्त के बारे में जैसे मैं पहले बता चुका हूँ रामागुप्त के रेफरेंस में, कि इन्होंने अपने भाई की जो है पत्नी को या अर्धांगिनी को साका से बचाया था, आने के बाद उन्होंने अपने भाई को पब्लिकली पनिश किया था। एंड लाइक समुद्रगुप्त जो थे इनके पिताजी, Chandragupta II was also a very benevolent king. He was an able leader and he was a skilled administrator. He defeated the Satrap dynasty or the Satrap clan of Saurashtra. He further expanded his kingdom to the coastline of the Arabian Sea. तो अब इनकी किंगडम अरेबियन सी तक भी जो है एक्सपांड हो चुकी थी। तो इनकी ये इन्हीं परस्यूट्स की वजह से he was given title of विक्रमादित्य। अब क्या था, वन मेजर चेंज दैट विक्रमादित्य और चंद्रगुप्त II डिड वाज ही शिफ्टेड हिज कैपिटल, और ही मेड हिज सेकंड कैपिटल एट उज्जैन। ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। Chandragupta II founded his second capital in Ujjain. This is why many historians also believe कि जो गुप्तास थे वो मध्य प्रदेश से थे, मॉडर्न डे मध्य प्रदेश में जो उज्जैन है, गुप्तास वहां से थे। ऑल्दो ये एक प्रूवन फैक्ट है कि चंद्रगुप्त II ने अपना कैपिटल उज्जैन में बनाया था। He was actually a very great patron of art and culture too, and one of the most important things that you should all note down while listening to me was he was also credited with the concept of, मतलब ऐसा नहीं कि इनसे पहले नहीं हुआ था, but he was also credited with the concept of the Navratan or 9 gems जो इनके कोर्ट में रहते थे। One of the most important and I think he's the most important name in that court of Navratan was Kalidas. Yes, certain works dedicate that Kalidas was among the 9 jewels of Raja Vikramaditya और राजा चंद्रगुप्त II। एक्चुअली चंद्रगुप्त II के बारे में और बहुत से वर्क्स एंड बहुत से इनके विक्ट्रीज मेंशन है, उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। इट्स जस्ट दैट इस वीडियो में
इन इन किंग्स के नाम पे चंद्रगुप्त दी सेकेंड जो है का नाम बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए. इनफैक्ट पर्सनली मी ही वाज द ग्रेटेस्ट किंग of North India. He was the greatest king of North India. We'll discuss more about him in a separate video. So now let's move on to the. So after Chandragupta II or Vikramaditya, his son Kumar Gupta ascended the throne, and Kumar Gupta the first. So Kumar Gupta the first, according to some sources, was the founder of Nalanda University, and Kumar Gupta was also believed to be a worshipper of Kartikeya. So about Kumara Gupta, in this video, this much would be enough, and we will move on to the next king, Skanda Gupta. So why I have ended my topic or this, this list on Skanda Gupta, because Skanda Gupta was the son and he was the successor of Kumar Gupta. और ये जितने भी गुप्ता रूलर्स थे, तो उन सब में से स्कंद गुप्ता was thought to be the last of the great Gupta rulers. यानी कि इनके जो बाद जितने भी रूलर्स आए थे गुप्ता डायनेस्टी के, वो सारे रेस्पॉन्सिबल थे कहीं ना कहीं उनके पॉलिसीज एंड उनके एटीट्यूड एंड उनके द वे ऑफ डीलिंग विद द किंगडम, वो सब रेस्पॉन्सिबल थे गुप्ता एम्पायर के डाउनफॉल के लिए. सो ही वॉज द लास्ट ऑफ द ग्रेट गुप्ता एम्पायर्स. एक 455 सीई के आसपास एक दिहुन्स का अटैक हुआ था, तो उन्होंने इसको रिपेल कर दिया था. बट अल्टीमेटली बाद में यही जो ये ट्राइब थी रहुन्स की, यही बाद में आते हैं और यही मतलब कहीं ना कहीं से एक बहुत ही मेजर रीजन बनते हैं इस एम्पायर के डाउनफॉल का. तो what we have discussed in this list is how the Gupta Empire or how the dynasty started with Sri Gupta. Then after that his son Sri Ghatotkacha. After that Ghatotkacha's son Chandragupta the first, and then Samudragupta, then Ramagupta, then Chandragupta the second or Vikramaditya, and then Kumaragupta, and then Skandagupta. So we have ended this list. Although I'll be making separate videos on certain kings from this list. And now we'd like to move on to the administration, which is our next topic, the administration of the Gupta Empire. The administration of the Gupta Empire. So, one of the main things that we learned about the Gupta Empire was also because a great traveler whose name is Fa Hien, we all might know, Chinese traveler Fa Hien, he visited the Gupta Empire and he has left a brilliant account of how the administration was. So Fa Hien called the cities of Mathura and Patliputra as picturesque, with the latter being described as a city of flowers. He also said that यहाँ पे जो लोग थे, they could move around freely, law and order reign, and मतलब Fa Hien के हिसाब से जो theft and burglary थे वो बहुत कम थे. Also, the efficiency of their martial system was well known, and because it was such a very large empire, so the empire was kind of divided into 26 provinces. 26 प्रोविंसेस में उनको डिवाइड किया था और उनको प्रदेश कहा जाता था, प्रदेश उन प्रोविंसेस को. तो उन प्रदेशों के नाम जैसे अलग अलग मतलब ये वर्ड स्पेल करते थे. जैसे कुछ लोग उनको राज्य बोलते थे, some historians have found that they were called राज्यस. उसके बाद उनको अलग अलग नामों से जैसे बुलाया जाता था. जैसे एक होता है देश, उसके बाद पृथ्वी, they were known as पृथ्वी मंडल. तो उसके बाद जो और जैसे जो प्रोविंसेस को भी इनको डिवाइड किया गया था विषयास में. विषयास एक जो प्रोविंस के अंदर एक पार्ट होते थे, एंड जो उनके लीडर थे, द लीडर और द रूलर, जैसे नाउअडेज मान लीजिए वी हैव द मेयर, सो देयर रूलर वाज नोन एज द विषयापति. उसके बाद the Varna system that we are talking about nowadays, the Varna system was existent, जो fourfold Varna system होते थे, the Varna system, and Kshatriyas जो कि kings माने जाते थे. Kshatriyas, it's a very actually interesting thing to see. The Kshatriyas, which are actually attributed with kingship and rulers and warriors and all, they were thought to be that they followed trade and commerce. तो ये सब हमें अलग स्टूडेंट से मिलते हैं. एंड ऑल्सो वी फाइंड दिस फ्रॉम द अकाउंट्स लेफ्ट बाय द travelers. The kings maintained discipline and transparency in the bureaucratic process. Criminal law was mild and capital punishment was unheard, and judicial torture was not practiced. ये काफी इंपॉर्टेंट है इस एम्पायर के बारे में जानने के लिए. अब जैसे भी
किसी भी एम्पायर की हम बात करते हैं या फिर वी टॉक अबाउट एनी ग्रेट एम्पायर, one thing that people always kind of wonder about or people think the most is the military. क्योंकि ये एक प्रूवन फैक्ट है कि जितनी स्ट्रांग आपकी मिलिट्री होगी उतना ही स्ट्रांग आपका एम्पायर होगा. एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एंशियंट एंड मिडिवल एम्पायर्स, मिलिट्री नाउ देन एंड नाउ एज वेल हैज ऑलवेज फॉर्म्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. तो चाहे आप मौर्यस का एग्जांपल ले लो, चाहे आप शुंगास का एग्जांपल ले लो, यू कैन ऑल्सो टेक द एग्जांपल ऑफ द गुप्ताज एज वेल. तो मिलिट्री जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही एसेंशियल पार्ट होता है किसी भी एम्पायर का, because the stronger your empire is, the stronger your military is, the stronger your empire is believed to be. So let's just see what actually was the system of military in the Gupta period. So the first thing is the use of siege engines were common. अभी siege engines होता क्या था? तो इसको अच्छे समझने के लिए आपको ये एक इसमें पिक दिया गया है, फर्स्ट पिक जो है आप उसमें देखिए तो यू विल सी दैट ये काइंड ऑफ टैच्ड एक अपर लेयर टाइप का एक एलिमेंट बना हुआ है जिसके अंदर जो है ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग आयरन रॉड इट मे बी, और इट वाज आल्सो वुड, वेरी स्ट्रॉन्ग वुड की तरह कंस्ट्रक्ट किया गया था. जैसे आप ये देख सकते हो ये मिलिट्री यूज करती थी पहले, अलग अलग करके जैसे स्लैंटेड थैच्ड रूफ लगा दिए जाते थे और उनके अंदर ये, ताकि सोल्जर्स इसको यूज कर पाए, ये एक लंबा सा और ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सा एक रॉड अटैच किया जाता था. मोस्टली सेज इंजिन इसलिए यूज किए जाते थे ताकि एनिमी वाल का जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है, द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कुड बी ब्रोकन. एंड अगर आपने, जैसे ये पहले माना जाता था, अगर आपने फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बहुत ही आसानी से ब्रेक कर दिया था तो जो एनिमी कैंप होता था उनमें बहुत ज्यादा एक डीमोटिवेटिंग फैक्टर बन जाता था कि आपने कितनी आसानी से उनका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ब्रेक कर दिया. जैसे आई जस्ट गिव अ वेरी गुड एग्जांपल. इफ यू सी द मूवी बाहुबली, if you just look at the movie Bahubali, you will just see by the end of it they're trying to break the last wall which has been guarded by Katappa. So when you see that the soldiers and their shields are being hitted by a strong piece of wood or a strong piece of metal, so the same thing went for the Gupta Empire. The siege engines were actually used and they proved to be a very important part of the Gupta army. Now the second point which is very important is that heavy cavalry was common. A cavalry, we all know, heavy armored soldiers riding on horsebacks or quite armored, or a very very advanced technology during that time. Also elephants and light infantry was used. Now the use of elephants, even we find it in various accounts in the Maurya dynasty also. Empires were filled with war elephants, which was very common because elephant is also thought to be a very strong war animal. So elephants and light infantry were the base support with heavy cavalry as well. And the second pick, if you see, the second pick is of Chandragupta II. He issued coins in his name, by the way. He issued coins. This is a coin of Chandragupta II. उनके टाइम पे ये सिक्के जो है पब्लिश किए गए थे. And here you can see him riding on the back of a horse, which can give us a very clear idea कि during those days horse was commonly used. And then to find out more about poetry, you can also check out Kalidasa's Raghuvamsha, which was written mostly dated around, a clear idea would be in the 5th century AD. तो वहां पे भी काफी बात की गई है मिलिट्री और वारफेयर के बारे में. एंड दिस इज अ वेरी क्लियर पिक्चर और वेरी सिंपल पिक्चर ऑफ व्हाट मिलिट्री एट दैट टाइम वाज. And then we will move now to also a very important section, which is the literature and science. So the first point in this part is the code language or the language of the people, which was used during the Gupta Empire, which was prevailing. So जो कोड लैंग्वेज होता है वो सबके एम्पायर, सब एम्पायर्स के अलग अलग थे. जैसे during the Mauryan Empire it was Magadhi, during the Mughal Empire it was Persian. There are certain evidences that Sanskrit was the language during the Chola Empire, and Sanskrit was the language, and Sanskrit was the language during the Gupta Empire as well. The Gupta Empire के टाइम पे भी संस्कृत ही यूज किया जाता था. It is believed and it is suggested by historians. उसके बाद जहां पे हम बात लिटरेचर की, उसके बाद हम जहां पे बात करते हैं लिटरेचर की, सो हाउ कैन वी नॉट मेंशन द मोस्ट, one of the most or
द शाइनिंग एग्जाम्पल ऑफ कालिदास, कालिदास का प्रेजेंस होना किसी भी एक कोर्ट में is itself to tell you how big or how rich the cultural or how rich the cultural part or the cultural dynasty of the Gupta Empire was. So Kalidas wrote a lot of books, and we all know how influential he has been to many of the literaties. And then alongside Kalidas, there were also a lot of important names. One of them was Varaha Mihira. Varaha Mihira has been a very noted figure in the field of astronomy, astrology, space science, and all. And he wrote Brihata Samhita, which was very influential in astronomy. अगर इतना काफी नहीं था तो आई विल टेल यू अ मोर और अ वेरी और अनदर वेरी कॉमन नेम जिससे ये प्रूव हो जाएगा कि व्हाई इज द गुप्ता एम्पायर कॉल्ड द गोल्डन एज इन टर्म्स ऑफ लिटरेचर एंड साइंस. सो दैट नेम इज आर्यभट्ट. आर्यभट्ट, एज वी ऑल प्राउडली बोस्ट ऑफ, invented zero, and Aryabhat wrote Surya Siddhant, which was very important, which was very very important for geometry, trigonometry and cosmology. तो ये तीन नाम तो ऐसे ही हैं यहाँ पे, और इसके अलावा भी ये तीन नाम ऐसे ही हैं, मतलब ये तीन नाम तो आप लोगों को पता है, और इसके अलावा भी बहुत ही इन्फ्लुएंशियल लोग थे उस टाइम पे, जिसकी वजह से हम ये प्राउडली कह सकते हैं कि जो उस गुप्ता एम्पायर का जो लिटरेरी सेक्शन था वो काफी ज्यादा रिच था. एंड यही हमें पेव करता है टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक, विच इज द इम्पैक्ट एंड द इन्फ्लुएंस. आई मीन किस तरीके से जो इस एम्पायर ने इन्फ्लुएंस मतलब कैसे इस एम्पायर ने इन्फ्लुएंस किया था आने वाले एम्पायर्स को, या फिर हमारे हिस्टोरियंस को, या फिर क्या इनकी सिग्निफिकेंस एक्चुअली रही है हमारे इंडियन हिस्ट्री में. So why exactly is this empire particularly called, or the period of this empire is known as the golden age in the history of Indian empire? It's pretty straight actually. If an empire has to be called as the golden age, it has to be seen from many perspectives. उसमें एडमिनिस्ट्रेशन होता है, उसमें मिलिट्री होता है, उसमें लिटरेचर है, उसमें साइंस है. So one of the most important thing which the Guptas were credited was the concept of Navratna, which was a model for other kings to come. नवरत्न बाद में जाके बहुत सारे किंग्स के जो है कोर्ट्स में बहुत से किंग्स के कोर्ट में जाके ये काफी यूज होने लगा, एंड द गुप्तास वर क्रेडिटेड एक्चुअली. उसके बाद द टेक्स्ट, द हिंदू टेक्स्ट, which is the Hindu epics, the Ramayana and the Mahabharata, were quite promoted in Sanskrit versions. We can find a good example of these things if we look from कालिदास वर्क अभिज्ञानम शकुंतलम. जैसे उन्होंने वो बुक लिखी किंग शकुंतला के, किंग दुष्यंत एंड शकुंतला के ऊपर, तो उसी तरीके से रामायण और महाभारत को भी काफी ज्यादा प्रमोट किया गया था. एंड इससे गोल्डन एज इसलिए भी कहा जाता है फ्रॉम लिटरेचर पर्सपेक्टिव कि उस टाइम पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज इस कोर्ट में रहा करते थे. लाइक कालिदास हिमसेल्फ रोट मालविका अग्निमित्रम, रघुवंशा और कुमार संभवा, अभिज्ञानम शकुंतलम. उस टाइम के पोएट थे एक हरिशेना ने लिखा था अलाहाबाद प्रशस्ति, वो पेनेजिस्ट थे एंड फ्लूटिस्ट भी थे. विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र लिखा था, विशाखा दत्त ने मुद्रा का राक्षस लिखा था. अदर पोएट्स लाइक वरारुचि, बौधायना, ईश्वर कृष्ण व्रतहारी contributed to both Sanskrit and Prakrit linguistics, philosophy and science. Then you have Varaha Mihira, who wrote Brihata Samhita. You have Aryabhatta, who wrote Surya Siddhanta. Then there was Dhanvantri. Dhanvantri's discoveries helped the Indian medicinal system of Ayurveda become more refined and efficient. Doctors were skilled in surgical practices and inoculation against contagious diseases which were performed. इवन टुडे धनवंतरीज बर्थ एनिवर्सरी, जो उनका बर्थडे होता है, वो हम धनतेरस के रूप में मनाते हैं दिवाली से 2 या कुछ दिन पहले. तो इफ यू हैव दीज काइंड ऑफ पीपल, और इट वुड बी कंसिडर्ड एज अ ब्लेसिंग एक्चुअली टू हैव so much talent under one roof. And there's no surprise actually if you see why, और क्यों इसे जो है एक सुनहरे पल की तरह देखा जाता है, because the Gupta Empire was blessed with so many genius figures. So इसी के साथ ही आई वुड लाइक टू कंक्लूड द फर्स्ट वीडियो. थैंक यू एवरीवन. अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक इट,
Subscribe the channel, hit the bell button, and do share. Thank you so much.